that is investiture ceremony. The investiture ceremony aims to empower students to take on leadership roles, foster a sense of responsibility and accountability, encourage student participation and engagement, develop leadership skills, teamwork and communication. It's a meaningful event that promotes students' growth, leadership and community building within the school. Now, let's begin the long-awaited propitious ceremony by invoking God's blessings. For this, I would like to invite our principal, Sister Reggie, on stage and would request her to seek the blessings of God. God our Father, we, the staff and students of Nirmala Convent High School, turn to you today to implore your blessings on our school. Bless each one of us here. Bless our parents, benefactors, and well-wishers. Bless our country and all its leaders. Especially bless our school cabinet members who are here to make their solemn promise. May the school prosper under their leadership. Mary, our mother, to whom the school is dedicated, be their guide in all what they do and say. I would now invite the newly elected school head boy Shivam Pandey and school head girl Arpita Dubey and house captains Mohammad Ayaz, Naveen Kumar, Chandra Kumar Chaube and Saurabh Singh to march ahead and place the school flag and house flags in the flag post. The most gracious moment, that is, oath taking, has arrived. The newly elected school head boy Shivam Pandey and school head girl Arpita Dubey will proudly move forward to receive their sashes and badges and proclaim their loyalty towards the institution. I would now request our principal to administer the oath of loyalty to the school head boy and school head girl respectively. What do you seek? The school has entrusted me with the task of its leadership. I beg for insignia of my office. Do you realize the duties this imposes on you? Yes, I do. I promise to do my best to be loyal to God, my country and my school, and to urge others to do the same.
I also promise to fulfill my duties to the best of my abilities. May I now request our chief guest, Mr. Arun Kumar, to confer the school head boy with badge and sash. For that, I would request H.N. Ricer to please come forward. Let your sash be a symbol of loyalty to God, your country, and your school. I once again request our chief guest, Mr. Amit, to confer the school head girl also with Task of its leadership. I beg for the insignia of my office. Do you realize the duties it imposes on you? Yes, I do. I promise to do my best to be loyal to God, my country, and my school, and to urge others to do the same. I also promise to fulfill my duties to the best of my abilities. Let your sash be a symbol of loyalty to God, your country, and your school. I also request Zareen ma'am to kindly come forward. Next, the assistant head boy Ashutosh Singh Rathod and assistant head girl Gayatri will march forward to receive the sash and badges. He is the assistant head boy of our school. What do you seek? The school has entrusted me with the task of its vice leadership. I beg for the insignia of my office. Do you realize the duties this imposes on you? Yes, I do. I promise to do my best to be loyal to God, my country, and my school, and also urge others to do the same. I also promise to fulfill my duties to the best of my abilities. Let your sash be a symbol of loyalty to God, your country, and your school. I now request our Vice Principal, Sister Nisha, to confer the Assistant Head Boy, Ashutosh Singh Rathod, with badge and sash. I request Viju sir to kindly come forward. Sister Nisha to confer our assistant head girl with badge and sash. What do you seek? The assistant head girl of our school. The school has entrusted me with the task of its vice leadership. I beg for the insignia of my office.
Do you accept the noble task entrusted to you? Yes, I do. I promise to do my best to be loyal to God, my school, and my country, and to urge others to do the same. And I also promise to fulfill my duties to the best of my ability. Let your sashes be a symbol of loyalty to God, your country, and your school. I request Next, the members of school parliament, that is Discipline Captain Maitri Sabu, Discipline Vice Captain Kriti Kant, Cleanliness Captain Zara, Cleanliness Vice Captain Gauri Shankar, Sports Captain Girls Srishti Dikshit, Sports Captain Boys Harshit Tripathi, Sports Vice Captain Boys Aryan Singh Rajput, and Sports Vice Captain Girls Anshika Singh will march forward to receive the sashes and badges. These are the members of parliament of our school. Do you accept the noble task entrusted to you? Yes, I accept this noble task. I promise to do my best to live up to the ideals of the school, to lead the members of my party to do the same. May I request Mr. G.N. Rai sir, Neha Srivastav ma'am and Sheetal ma'am to kindly come forward and do the honor. Let your sashes be a symbol of loyalty to God, your country, and your school. Now, I request the captain of Gandhi House, Azad House, Tilak House and Nehru House to march ahead and accept the task entrusted to them. Do you accept the noble task entrusted to you? Yes, I accept this noble task. I promise to do my best to live up to the ideals of the school, to lead the members of my party to do the same. Let your sash be a symbol of loyalty to God, your country, and your school. To give away the sash and badges, I would like to invite Anuj sir, Anjana ma'am
and Arun sir to kindly come forward. Student, please give them a big round of applause. Mohammed Ayaz, Vice Captain Harshita Pathak, along with the House members, will come forward to accept the responsibilities entrusted upon them. These are the sub-captains of Gandhi House. Do you accept the noble task entrusted to you? Let your sash be a symbol of loyalty to God, your country, and your school. To do the honor, may I now request Rakesh sir, Silva Rani ma'am and Shiny ma'am to kindly come forward. Azad House Captain Naveen Kumar, along with Vice Captain Shatakshi Shukla, will lead his contingent to receive the sashes and badges. Do you accept the noble task entrusted to you? Yes, I accept this noble task. I promise to do my best to live up to the ideals of the school, to lead the members of my party to do the same.
To do the honor, I request Anita Pandey ma'am and Pathak sir to kindly come forward. Let your sash be a symbol of loyalty to God, your country, and your school. Now, Chandra Kumar Chaube, the captain of Tilak House, will march ahead along with the vice captain Archie Singh and his teammates to accept the responsibilities entrusted upon them. These are the sub-captains of Tilak House. Do you accept the noble task entrusted to you? May I request Sumitra ma'am, Nityanand sir and Neha ma'am to kindly come forward. Let your sash be a symbol of loyalty to God, your country, and your school. Of Nehru House, Saurabh Singh, along with the vice captain Arpita Maurya, will march forward to receive the badge and sashes. These are the sub-captains of Nehru House. Do you accept the noble task entrusted to you? Yes, I accept this noble task. I promise to do my best to live up to the ideals of the school, to lead the members of my party to do the same. To do the honor, may I request Viju sir, Sheetal ma'am and Anandita ma'am to please come forward. Loyalty to God, your country, and your school. I would now request our principal to please pray to God for his benevolence and bless the students. God our Father, look graciously on this assembly at the commencement of our academic year. You place at your feet all our efforts. Bless our search for knowledge. Lord, touch our hearts that along with the intellect, our will may also be strengthened
so that we may always strive to choose the right path. Order of light, God Almighty, like the blind groping in the dark, we turn to you. Enlighten our minds with your heavenly light. Let us pray to the Lord. Origin of harmony, God Almighty, you who with a word did create the universe and all that is in it, impart to our hands efficiency and skill in all our works. Let us pray to the Lord. That our newly elected leaders may work together in harmony, unity and brotherhood for the betterment and progress of the school, and may they lead the members of their house to live up to the ideal of the school with courage and dedication. Let us pray to the Lord. Lord, we entrusted to your care Mr. Amit Kumar and all others who are working in the police department, who are working tirelessly for the safety of our country. May you be with them and be with them in all their endeavors. For this, let us pray to the Lord. That our dear country and whole world may find peace and solution to their problems. Let us pray to the Lord. That this academic year may find all of us growing in knowledge, love, and service of you, our loving God and Father. For this, let us pray to the Lord. Mr. Amit Kumar to kindly grace us with his words and guide our young leaders towards the path of excellence.
थैंक यू प्रिंसिपल मैम, थैंक यू पूरा टीचर्स स्टाफ और यहाँ पर लीडरशिप सेरेमनी में आए हुए पेरेंट्स, गार्जियन, आप सबको और प्यारे बच्चों आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आपके क्षेत्र में, जैसा कि इंट्रोडक्शन में बताया गया, 1 साल हो रहा है मुझे। अमूमन हम लोग 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 1 साल, 6 महीने, ऐसे कोई निश्चित नहीं होता रहने का। लेकिन पिछले 1 साल से आपके बीच हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पे बना हुआ हूँ। अगर आप अच्छा काम करते हैं अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के लिए, तो आपको एप्रिसिएशन मिलता है, आपको प्यार मिलता है, आपको रिकग्निशन, रिस्पेक्ट सब मिलता है। आज इस लीडरशिप की सेरेमनी है। आप लोगों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। मुझे बताया गया कि अब 1 वर्ष ये चारों हाउस अपनी अपनी एक्टिविटीज़ पर ध्यान देंगे और फिर उसके बाद उसी में बीच बीच में कुछ कंपटीशन होंगे और जो बेहतर करेंगे उन्हें लास्ट में शायद फिर से जो है कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें भी आऊं और वो सारी चीज़ें देखूं आपके साथ। जब आपको कोई ओथ दिलाई जाती है तो आप बोलते हैं आई डू, यस आई डू। इसे फील किया, कभी फील किया, मतलब आई डू, यस आई डू, मैं करूँगा। तो ये बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी बात है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हैं, आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि मैं करूँगा, मैं वो करके दिखाऊंगा जिस चीज़ के लिए मुझे चुना गया है। हमें कभी अपनी पहचान से और अपने काम से समझौता नहीं करना चाहिए। हम कुछ भी हों, हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम पुलिस में हैं, प्रशासन में हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम भाई बहन हैं, सब जगह हर रिश्ते के साथ, हर नाम के साथ कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है और जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी के इक्वल रिस्पेक्ट है, रिकग्निशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बराबर ही रिकग्निशन है। मैं अगर और बड़ी पोस्ट पर होता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी होती और मेरी रिकग्निशन भी उतनी बड़ी हो जाती। आप अपनी रिकग्निशन से, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, आप किस लिए जाने जाते हैं? आप स्टूडेंट के लिए जाने जाते हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या वही काम कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट को करना चाहिए या कुछ और कर रहे हैं। आप टीचर के लिए जाने जाते हैं। आप कुछ अमित, अनुज या जो है कोई भी नाम वो बाद में होंगे। आप किसी भी कास्ट के होंगे, किसी भी रिलीजन के होंगे, कुछ भी और होंगे, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो पहली पहचान है आपकी, या जिस चीज़ के लिए आपको चुना गया है वो पहली पहचान है आपकी, और आपको उसे अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। एज स्टूडेंट आपकी रिकग्निशन यही है कि आप स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट के काम क्या है कि वो डिसिप्लिन में रहता है, वो अपने होमवर्क टाइमली करता है, वो बाकी बच्चों के साथ, बाकी दोस्तों के साथ अच्छा समय व्यतीत करता है, उनको बुली नहीं करता है। आजकल एक चीज़ आती है हमेशा कि आपस में 4-4, 5-5 बच्चों का ग्रुप बन जाता है और फिर वो आपस में एक दूसरे को बुली करते हैं। बुली किस तरह से करते हैं? अगर उसको किसी छोटी मोटी कोई किसी को कमी दिख गई तो उसके आधार पर उसे चिढ़ाना। इस नेचर ने हमें, जिसने बनाया है उसने हमें कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी दे रखी है। ये पूरी पढ़ाई लिखाई का मतलब भी यही है कि आप पहचान सको कि आप कहाँ बेहतर कर सकते हो।
इस सोसाइटी को सबकी ज़रूरत है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे टीचर हो, चाहे दूसरे व्यवसाय करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार है, वॉशरमैन है, स्वीपर है, सबकी ज़रूरत है। म्यूजिशियन है, टेक्नीशियन है, किसकी ज़रूरत नहीं। क्या किसी एक के बिना काम चल सकता है? अगर एक काम आप सोचिए और उसको हटा दीजिए कि ये अब नहीं है, भला उसके बारे में, उसके बिना आपका कोई काम चल सकता है? आपको समझने की ज़रूरत है कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। टीचिंग का भी यही उद्देश्य होता है। आप 10 साल 12 साल अगर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12वीं तक अगर आप सोचें तो मतलब आपको लगेगा कि आपको तमाम सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तमाम सारे एक तरह से आप पे एक्सपेरिमेंट चल रहे होते हैं कि ये किस चीज़ में बेहतर कर सकता है। और ये पहचानने का काम 3 लोगों का है। एक तो जो गार्जियन है, उनको भी पहचानना है कि हमारा बच्चा किस जगह बेहतर कर सकता है। टीचर्स हैं, उसको उसमें निखार लाने की ज़रूरत है कि ये बच्चा इस चीज़ के लिए बेहतर है। हो सकता है किसी को, और तीसरा है बच्चा स्वयं, जो खुद समझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। और आपको जब समझ में आए कि हम क्या कर सकते हैं तो आपको उसी फील्ड में बेहतर करना चाहिए। आप जरा सोचिए, हमेशा ये चीज़ बताई जाती है, कोई नहीं है कि अगर सचिन तेंदुलकर से उसके माता पिता ज़बरदस्ती कहते कि नहीं तुम क्रिकेट ना खेलो, तुम बिजनेस कर लो, तो क्या वो सही बिजनेसमैन बन पाता? या लता मंगेशकर जी से कहते कि आप सिंगिंग ना करें, आप क्रिकेट खेलें, तो क्या वो सही क्रिकेटर बन पाती? हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा किस चीज़ में बेहतर कर सकता है। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। जब आप काम को पूरी शिद्दत और पूरे मन से करते हैं तो उसी चीज़ में, उसी काम में कुछ लोग इतना बेहतर कर जाते हैं कि वो उदाहरण की तरह बन जाते हैं। चाहे कोई भी काम हो, इवन आप तमाम सारी चीज़ों को ऐसा सुनते होंगे कि वो तो फलाने हैं और वो पहले एक छोटी सी दुकान लगाते थे, चाट गोलगप्पे की दुकान लगाते थे, अब रेस्टोरेंट खोल लिया। अब जब आप चाट गोलगप्पे की दुकान लगा रहे थे तो वो छोटा काम था, लेकिन आपने उसे इतना बड़ा किया कि रेस्टोरेंट खोल लिया। आप प्रयागराज जाएंगे तो एक पंडित जी चाट वाले हैं, उनकी दुकान में इतना बड़ा बिजनेस है उसका कि पूछिए मत। आपने एक हेयर ड्रेसिंग वाले का नाम सुना होगा, जावेद हबीब। ऐसे तो बाल काटने वाले बहुत हैं, लेकिन एक वो भी है जिसके यहाँ मुझे लगता है कि जिसकी अच्छी सैलरी ना हो और शौक ना रखता हो, वो बाल ही नहीं कटवा पाएगा। 2000-3000 रुपये बाल कटवाने की फीस है। तो आप सोचिए कि एक लेवल पर एक और भी है जो बाल काटने के काम कर रहे हैं, और एक जावेद हबीब है। काम तो एक ही है ना, काम वही है, बाल काटना काम वही है, सिलाई का काम करना काम वही है, लेकिन एक छोटे लेवल पे कर रहा है तो वो छोटा हो गया, और एक उसी काम को बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। यहाँ इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम हैं, यहाँ इतने बड़े बड़े कबाड़ी है ना कि वो करोड़ों का टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, रजिस्टर्ड कबाड़ी। और एक ऐसे भी लोग हैं जो सुबह सुबह बोरी लेकर और बोतल बिनते रहते हैं, पानी वाली और तमाम सारी, जिसको वो कबाड़ में बेचे। आपको समझने की जरूरत है कि आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई काम छोटा बड़ा होता है। आप कितना बड़े लेवल पे उसे करते हैं उसी से निर्धारित होता है। तो मेरा कहना ये कि जो जिस फील्ड में जाए, 10, 12, 15 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक आपको अपने बच्चे को समझना है और उसे भी समझाना है कि वो किस फील्ड में जा सकता है। जो बच्चे देर में समझ पाते हैं उन्हीं का टाइम लॉस होता है। वही देर मतलब आप कर कुछ और सकते थे लेकिन कर कुछ और रहे हैं, या आपके अंदर कुछ एबिलिटी कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। क्यों ऐसा कि फर्स्ट प्रेफरेंस IAS IPS ही बनना है, जबकि आपसे बताएं कि इतने ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं जिनको भारत सरकार बुलाती है कि आइए कुछ बताइए कि हम क्या करें। अभी पाकिस्तान से इतना तनाव चल रहा है, यहाँ पे बुलाया जाता है, उनको पूछा जाता है। बड़े बड़े पत्रकारों को बुलाया जाता है, बहुत बड़े पत्रकार, कि बात बताएं कि हम क्या करें कि हमारे रिश्ते भी बेहतर हो, हमारा काम भी अच्छा चले। उनके पास टाइम भी नहीं है।
ऐसी चीज़ें हैं। तो आप किसी को, मेरा कहना यही है कि किसी को मैथ्स आती है, किसी को हिंदी आती है, किसी को संस्कृत में मज़ा आता है, किसी को साइंस में मज़ा आता है, किसी को कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छा लगता है। तो जो जिस फील्ड में बेहतर कर सकता है उसे पहचानिए, उसे उसी दिशा में ले जाइए और वो उस दिशा में टॉप करके दिखाएगा आपको। उसे जबरदस्ती किसी दूसरे सांचे में ढालने का प्रयास मत करिए। ये टीचर्स का भी है कि वो पहचाने और उस तरह से उसे ट्रीट करें। ये अभिभावक का भी है। दूसरा, बच्चे यहाँ पे हैं, साथ में अभिभावक हैं। मैं बच्चों से ज़्यादा अभिभावक से या पेरेंट्स से, गार्जियन से बात करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि इन्हें भी कुछ समझाने के साथ साथ उनसे ज़्यादा आप तक बात पहुँचाने की ज़रूरत है। आप जान लीजिए कि आपके बच्चे आपके कहने से नहीं सीखते, आपको करता हुआ देखने से सीखते हैं। आप जो करोगे वो वही करेगा। घर में मम्मी हैं, वो घरेलू काम करती हैं, खाना बनाती हैं, बर्तन झाड़ू पोछा पूरा घर संभालती हैं। जब बिटिया होती है तो वो अपने आप वो सब काम करने लगती है। और अगर वही लड़का होगा तो वो पापा को देखता है कि किधर भाग रहे हैं, तो वो घर से बाहर जाते हैं, रोज सवेरे तैयार होते, बाइक उठाते, हेलमेट लगाते चल देते, तो वो सवेरे सवेरे जिस समय उसको बाइक मिलेगी उसी के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। तो ये समझने की जरूरत है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस घर में पूजा पाठ होती है उस घर का बच्चा पूजा पाठ करना अपने आप सीख जाता है, उसे सिखाना नहीं पड़ता है। पंडित जी के बच्चे को कभी सिखाना पड़ा क्या कि कथा कैसे सुनाए? या जो व्यापारी है जिसका दुकान चल रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, उसके बच्चे को दुकानदारी नहीं सिखानी पड़ती, वो सीख जाता है। केवट के बच्चे को रियान द डैम में उतार दो, अभी तैर वैर के बाहर निकल आएगा। उसने देखा वही है, उसने जो देखा है वही है, वही कर रहा है। और अगर आप जबरदस्ती उसे करोगे करोगे नहीं, आप अपने बच्चे के सामने पढ़ते लिखते नजर आओगे तो उसको कहना नहीं पड़ेगा कभी कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो, आपको कभी नहीं कहना पड़ेगा। बच्चे कुछ बड़े हो रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ये समझें कि आपके माँ बाप, आपके टीचर्स आपको आपके हित में ही कोई बात कह रहे हैं, आपके भले के लिए कोई बात कर रहे हैं। आप एक मनोविज्ञान जो साइकोलॉजी है वो कहती है कि अगर आप अपना हित नहीं कर सकते तो आप किसी का हित क्या करेंगे। सबसे पहले तो आप अपना हित करिए। आप जो कुछ करेंगे उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। 11वीं 12वीं में आते आते बच्चे का मन क्लियर हो जाता है कि उसे जीवन में क्या करना है। उसके बाद भी कुछ भटकते हैं, कोई कभी कॉमर्स करेगा तो कोई साइंस करेगा, कोई आर्ट्स में जाएगा, फिर भटक के आएगा कि नहीं मैं ये ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। ऐसे बहुत लोगों की कहानियाँ हैं। उसको जितनी जल्दी आप पहचान लें कि मैं इसमें बेहतर कर सकता हूँ, फिर उसी में लगनशीलता से करें, उसी में बेहतर ढंग से काम करें। आज ये लीडरशिप का जो है सेरेमनी है, लीडरशिप की कोई एक डिफिनेशन नहीं है, ना कोई उसकी एक मीनिंग है, ना कोई उसका एक सेट पैटर्न है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ कमोबेश चीज़ें हम देखते हैं। गांधी जी का गांधी हाउस, नेहरू हाउस, तिलक हाउस और आज़ाद हाउस आपके यहाँ बने हुए हैं। जब फ्रीडम का मूवमेंट पढ़ते हैं, जो है स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करते हैं, तो गांधी जी की कई सारी चीज़ों में बड़ी आलोचना होती है कि इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया कि एक छोटी सी घटना हो गई थी। गांधी बहुत ही परफेक्ट लीडर, बहुत ही परफेक्ट मैनेजर है। वो ये इस चीज़ की भी फिक्र नहीं करते कि जो मेरा फॉलोअर है वही मुझे बाद में मेरी आलोचना करेगा, मुझे भला बुरा कहेगा। वो बस ये देखते थे कि वास्तव में ये करना क्या मेरे ही फॉलोअर्स के लिए ठीक है या नहीं है। लीडर की ये भी क्वालिटी होती है कि अगर आपको ठीक लग रहा है कि ये चीज़ ठीक है तो भले सारे लोग एक तरफ हो जाएं, लेकिन आपको जो सही है उसके साथ खड़े रहना है। आपको सबकी बात सुननी है। एज ए पुलिस ऑफिसर हम लोगों को ट्रेनिंग में बताया जाता है कि कितना भी दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो सकता है कि वो 10 काम में गलत हो, लेकिन एक काम में हो सकता है वो सही हो। आप अगर उसकी पूरी बात ही नहीं सुनेंगे तो कैसे जान पाएंगे कि वो कितना सही कितना गलत है। आपको बायस नहीं होना।
बायस मतलब कि आप किसी के बारे में धारणा नहीं बना सकते कि वो तो ऐसा ही है, ये जो वो तो ऐसा ही है या वो ऐसे ही है, ये बहुत गलत धारणा है। इसमें आप जनरलाइजेशन कर देते हैं, मतलब एक सांचे में सबको डाल देना, जबकि ऐसा नहीं होता है। हर आदमी अलग है, उसके सोच विचार, उसकी परवरिश अलग है, और हर आदमी अपने अपने हिसाब से एक्शन लेता है, अपने अपने हिसाब से काम करता है। अब आपने पूरा एक साथ सारे लोगों को उठाया और एक डब्बे में बंद कर दिया कि ये सारे लोग इस तरह के हैं, या ये सोसाइटी में बहुत होता है, ये सारी कम्युनिटी इस तरह की है, ये लोग, ये इस उम्र के जो बच्चे हैं ये इसी तरह के होते हैं, या इस कास्ट के लोग इसी तरह के होते हैं, या इस क्लास के बच्चे इसी तरह के, या इस ग्रुप के जो बच्चे हैं वो उसी तरह के। ऐसा नहीं करना है, बायस नहीं होना। आपको हर बार सोचना है, जब भी आपके पास कोई बात आएगी आप न्यूट्रल माइंड से सोचेंगे, आप उसकी सारी बातें सुनेंगे, दोनों पक्ष की बातें सुनेंगे, जितने भी उसके आयाम होंगे, जितने डायमेंशंस होंगे, उन सब को सुनेंगे। तब आप कभी धोखा नहीं होगा आपके साथ, कभी आप गलती नहीं करेंगे। नहीं तो कभी आप एक तरफ का सुने और दूसरी तरफ का नहीं सुने और मन में कोई धारणा बना रखी है, तो आप जरूर गलती कर जाएंगे। इसलिए जब भी आपके पास कोई बात आए तो आप उस दोनों पक्षों को सुने, जितने भी उसके डायमेंशन हैं उन सबको चेक करें। आपको पढ़ाया लिखाया जा रहा है, हमेशा कहा जाता है कि दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचो, कहा जाता है, पढ़ो, समझो, दिमाग लगाओ। वो वहाँ पर भी वही करने की ज़रूरत है। आपको इतना अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, आप साल भर के लिए एक जिम्मेदारी पर आए हुए हैं, उसको अच्छे से निभाइए, पूरी इंटीग्रिटी, पूरे लगन से, मेहनत से, मन से। साथ में अपने साथियों को आगे बढ़ाइए, अपने साथ सबको साथ लेके चलने की कला ही लीडरशिप है। जितने ज़्यादा, कुछ ना कुछ लोग कभी ना कभी कुछ बुराई करते हैं, कुछ कमी बताते हैं, कमियों को दबाना नहीं है। अगर आप किसी की बात दबाने का प्रयास करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, वो एक अच्छे लीडर की निशानी नहीं है। नेहरू हाउस है, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में जब उनकी कैबिनेट बनी, उनके मंत्री थे, तो अंबेडकर नेहरू जी से बहुत ही नाराज रहते थे, लेकिन उन्होंने उनको अपनी कैबिनेट में जगह दिया कि आप रहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप रहिए। आपसे बेहतर कश्मीर मामला कोई नहीं हल कर सकता, क्योंकि आपकी विचारधारा भी वैसी है। एक जो है अधिक राष्ट्रवादी, या कह लो, या ज़्यादा कट्टर राष्ट्रवादी की विचारधारा है। आपको जो है कश्मीर जैसे मामले को हैंडल करने के लिए, और उनको कश्मीर मामले का जो है मंत्री बना दिया। ये नेहरू थे, ये थी लीडरशिप, कि हाँ आपका विरोधी है फिर भी आप उसे अपने साथ खींच रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में नेहरू जी को बहुत आलोचना करी, बहुत आलोचना करी, इतनी खिंचाई करी नेहरू जी की, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और जब पूरा सेशन खत्म हुआ, उसके बाद बाहर निकल कर और अलग जगह मुलाकात हुई, तो नेहरू जी ने बुलाया, कहा उन्हें बुलाइए जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उन्हें हाथ मिलाया और कहा कि एक दिन तुम देश के प्रधानमंत्री बनोगे। जबकि सेशन के अंदर जो है, सेशन के अंदर से उस पार्लियामेंट के अंदर जो है नेहरू जी की इतनी बुराई किया अटल बिहारी वाजपेयी ने कि आपके काम में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, आप तो यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि यार ये तेज है। अब दूसरा लीडर होता, जो कमज़ोर लीडर कहूँगा मैं, तो वो सोचता कि ये मेरा विरोधी है, इससे तो बात ही नहीं करनी, इसको ऐसा करो, दबा दो, इसको आगे ना आने दो। लेकिन वो नेहरू थे, उन्होंने कहा ये तेज आदमी है, ये देश का नेतृत्व करेगा कभी ना कभी, इसको करना चाहिए। इंदिरा गांधी ने जो है जब प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने नेहरू जी को, नेहरू विपक्ष में थे, वो अटल जी विपक्ष में थे, और उनको यूएनओ में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए भेज दिया। और पूरा विश्व दंग था कि जब जो इनकी सरकार का विरोधी है उसी को सरकार के समर्थन में भेज रहे हैं, समर्थन में बात रखने के लिए भेज रहे हैं। तो ये बताया गया कि हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हम विरोधियों की बात, जो दूसरे पक्ष के दूसरी तरह से, बस वो दूसरी सोच ही तो रखते हैं। आप अगर सही काम करोगे तो उसके साथ हो जाएंगे। गांधी कहते थे कि आप ऐसा काम करो कि दूसरे का भी मन परिवर्तित हो जाए, हृदय परिवर्तित हो जाए, हार्ट चेंज हो जाए। और जब आप सही काम करोगे तो इतिहास आपको, आपका समाज आपको सही काम के लिए
आपके पास भले ही 2-4 विरोधी हों, लेकिन बड़ी संख्या में लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो लीडरशिप यही है जो है कि आप अपने जो आपसे अलग तरह से सोचता है उसको भी सुनेंगे, उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। आप किसी के प्रति बायस नहीं होंगे, पहले से धारणा नहीं बनाएंगे कि ये ऐसा ही है, ये वाली नहीं चलेगी। नहीं, आप लीडरशिप कर ही नहीं पाएंगे। आप सबको साथ लेके चलने का प्रयास करेंगे। आप बातचीत के माध्यम से मिलजुल कर बैठकर किसी समस्या का समाधान करना सीखेंगे, ना कि गुस्से में और जो है लड़ाई झगड़े करके किसी समस्या का समाधान या किसी बात पर करना सीखेंगे। आप अपने आप अपनी टीम वर्क के साथ काम करेंगे। आप टीम को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। ये सारे काम आप जब करेंगे तो आप एक बेहतर लीडर की तरफ बढ़ेंगे। और आज ये यहाँ पर विद्यालय में है, समाज को सबकी ज़रूरत है, मैं एक अच्छे नेता की भी ज़रूरत है। और अच्छे लोगों की कमी हर जगह है, हमारे यहाँ भी कमी है, सब जगह कमी है। ढंग के जो ईमानदार हैं, मेहनती हैं, जानकार हैं, उनकी कमी हर जगह है, चाहे वो कितने भी हो, कमी ही रहती है उनकी। अगर आप बेहतर काम करेंगे तो आपकी पूछ आपको सब लोग याद करेंगे, आपको सब बुलाना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि इनके साथ काम करने का मौका मिल जाए, तो वो करिए। अब एज यूपी पुलिस की तरफ से मैं हर जगह जाता हूँ तो कुछ ना कुछ बातें बताता हूँ, तो थोड़ी सी बातें यूपी पुलिस के लिए की तरफ से की। आपको पिछली बार जब हम आपसे मिले थे या कभी कभी हमारे थाने से कुछ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ये सब आते होंगे तो कुछ ना कुछ बताते होंगे, जैसे कुछ टोल फ्री नंबर के बारे में बताया जाता होगा। आपको याद भी होगा, अब मैं यहाँ से पूछूंगा नहीं, लेकिन आपको फिर से एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अगर किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी होती है, वो फिजिकली भी हो सकती है, रास्ते में आते जाते समय हो सकती है, या फ़ोन पर भी परेशान किया जा सकता है, कॉल करके, मैसेज करके, तो उसके बारे में आप 1090 पे कंप्लेन कर सकते हैं। 1090 ऐसा नंबर है जिसमें जो कंप्लेन करता है उसकी पहचान को गोपनीय रखा जाता है, क्योंकि हमारे समाज में एक टैबू बना हुआ है, एक धारणाएं बनी हुई हैं कि महिलाएं अपनी खुद ही परेशान रहती हैं और खुद ही बात नहीं कह पाती, अपनी शर्माती हैं, घबराती हैं, लाज आती है। लड़कियां परेशान भी रहेंगी। वैसे परेशान उसको होना चाहिए जो दुष्ट है, जो बदतमीजी कर रहा है, परेशान तो उसे होना चाहिए ना, शर्म भी उसे ही आनी चाहिए। लेकिन यहाँ उल्टा है सिस्टम। इस चक्कर में इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भी 1090 बनाया गया कि कभी अगर कोई महिला या कोई लड़की अपनी बात कहने में डर रही है या उसे लोक लाज आ रही है, तो वो 1090 पे कॉल करके बता सकती है। उसकी पहचान गोपनीय रखी जाती है, लेकिन जो परेशान कर रहा है उसके बारे में सारी सूचनाएं दे। जैसा सब जगह होता है, आपके घर में कोई गलती करता है तो आप पहले समझाने का प्रयास करते हैं, उसी तरह वहाँ भी किया जाता है। पहले समझाने का प्रयास किया जाता है कि ये बंद कर दीजिए, फिर भी नहीं मानते तो उनके घर वालों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाता है, और फिर भी नहीं मानते तो फिर केस करके आगे की कार्रवाई की जाती है। हमेशा पुलिस प्रशासन सबका उद्देश्य यही है कि लोग सुधरे, अच्छे बने, ये नहीं कि और बड़े अपराधी बन जाए। तो हमारा उद्देश्य भी वही रहता है कि अगर कोई किसी नासमझी में गलती कर रहा है तो उसे सुधारने का प्रयास किया जाए। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो बता भी नहीं पाते अपनी बातों को, और उनके साथ कई बार गलत हो रहा होता है। हम लोग देखते हैं ऐसे ऐसे केस आते हैं कि मतलब मन खिन्न हो जाए और ख़राब लगता है। छोटा बच्चा है, उसको चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाने के बहाने कुछ ले जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं, और वो बताता भी नहीं है, उसको पता भी नहीं है। तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों को जो 5 साल 7 साल के हैं, वो लड़के लड़की कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में बताइए। आप समझिए, आप मोबाइल चलाते हैं, उसमें भी देख सकते हैं, या कभी ना कभी पुलिस वालों ने भी बताया होगा कि गुड टच बैड टच क्या होता है। तो ये आप अपने छोटे बच्चे को बताइए। आप मत जानिए, आपके जानने से क्या होगा, आप तो बता ही ले जाएंगे। आप अपने छोटे बच्चे को जो 4 साल 3 साल 5 साल 7 साल का है, उसको बताइए कि कोई इस तरह से कुछ करे तो उसे जो है हमको बताएं। एज ए पेरेंट्स हमारा ये फेलियर है
कि हमारा ही बच्चा अपने साथ हो रही कोई बात को हमसे ना बता के अपने दोस्तों से बताना ज़्यादा अच्छा समझता है। ये हमारा फेलियर है। हमारा ही बच्चा है, हम ही ने पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, उसे पाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ कोई घटना होती है तो वो हमसे अपनी बात नहीं कह पाता। तो ये आपको इतनी सहजता उसके प्रति लानी है कि वो अपनी बात बता सके कि मेरे साथ आज यहाँ पर ये हुआ या ऐसी घटना मेरे साथ हो रही है। नहीं, अंदर अंदर वो परेशान रहेगा। और पहले उस पर डाउट मत करिए, पहले उसे सुनिए, समझिए और सलूशन निकालने की प्रयास करिए, ना कि गुस्से में आके कि एक समस्या के समाधान में दूसरी समस्या पैदा कर देना। ये वाला अप्रोच नहीं होना चाहिए, हमें सही करनी है चीज़ों को। 1098 नंबर है जो है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, 102 और 108 एम्बुलेंस की सहायता के लिए नंबर है। अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो आप बताइए, आप झिझकिए मत। हो सकता है आप किसी एक्सीडेंट की सूचना दें तो पुलिस एक दो बारी आपसे बात करे, आपको बुलाए उस घटना के बारे में जानने के लिए, लेकिन केवल इस वजह से कि हमको पुलिस हमसे पूछताछ करेगी हम कुछ नहीं बताएं, ये गलत बात है। अगर आपने कुछ नहीं किया, बस आपको यही बताना है कि यहाँ ऐसे हुआ था, ये हुआ था। आप जब भी कहीं जाएं, आप ब्लॉक जाते हैं, तहसील जाते हैं, आप जिला के किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, कार्यालय में जाते हैं, एक तरफ खड़े हो जाएं। ये काफ़ी देर से खड़े बच्चे हैं। मैं बता दूं, जब हम लोगों को परेड होती थी तो हम लोग भी 2-2 घंटे खड़े रहते थे। तो हम लोगों से कहा जाता था कि जूते के अंदर उंगली चलाते रहिए, जूते के अंदर उंगलियां चलाते रहिए और एक जगह एकटक मत देखिए, इधर उधर देखिए। तो कभी कभी हम लोगों से कहा जाता था कि अच्छा अपने मन में ये ग्राउंड के पेड़ गिन डालिए, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, या इधर से इधर को गिन डालिए, या कुछ करिए जिससे आप गिरेंगे नहीं, आप वो अनकॉन्शियस नहीं होंगे, मूर्छा में नहीं आएंगे। आप अपने पैर की उंगली चलाएं, आपने इस तरह की चीज़ें करें जिससे कि वो कोई दिक्कत ना हो। मैं बस ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरा, ये आप जानते हैं कि ये रोड जो है ऐसी है, अक्सर जाम भी लग जाता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये कम से कम हो। मैंने आप विद्यालयों से भी कहा है कि एक हम लोगों को ज्ञापन वगैरह कुछ दे दीजिए जिससे हम इन सब पर भी थोड़ा सा दबाव बनाएं, क्योंकि हमारे विद्यालय कई बार बंद हो जाते हैं। पिछले वर्ष तो कई बार, मतलब मुझे लगता है 5 से 7 दिन स्कूल इसलिए बंद रहे क्योंकि बच्चे स्कूल ही नहीं पहुँच पाए। ये बहुत ख़राब था, बहुत ही शर्मनाक है कि हम ऐसी परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं जिनको हम रिजॉल्व पूरी तरह से नहीं कर पाए। इस साल हम प्रयास करेंगे कि वैसी परिस्थितियाँ ना हो। अभी कुछ दिन पहले जाम लग गया था तो उसके बारे में बताया गया है। फिर भी ट्रैफिक बहुत है इस रोड में, रोड खतरनाक भी है, जगह नहीं है अगल बगल, रोड टेढ़े मेढ़े हैं, सामने से दिखाई नहीं देता। तो हाथी नाला से लेकर जब भी आप आगे तक जाएँ शक्तिनगर तक, तो बहुत सावधानी से चलें, हेलमेट लगा के चलें। सारे बच्चे अपने गार्जियन से कहें कि वो हेलमेट लगा के चलें, बिना हेलमेट के कोई ना चले। कोई भी आदमी हेलमेट लगा के नहीं चलता। फिर जब हम चालान करते हैं तो कहते हैं अरे साहब बस दूध लेने तो आया था, या बस यहीं पर दवा लेने आया था, ये बस इतने काम के लिए आया था, बस मेरा तो बगल में ही घर है। ऐसी बहानेबाजी है ये सब। ये सिर्फ आदत की बात है, आदत ही नहीं हेलमेट लगाने की और कोई बात नहीं, आदत ही नहीं सीट बेल्ट लगाने की और कोई बात नहीं। और डर भी नहीं है कि पुलिस क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा चालान कर देगी, वो भी नहीं करेगी, क्योंकि जब हजारों लोग वही काम कर रहे हैं तो कितने का चालान करेगी। और यही आदमी जब दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, तो वहाँ सब अपने आप लगा के घूम रहा होता है। तो आदत की बात है और डर की भी बात है। आदत, हमें कोशिश करने की हमारी आदत पड़ जाए। डर की बात कोई अच्छी बात नहीं है कि आप डर से हेलमेट लगाएं, आप अपनी सावधानी के लिए लगाएं। आपको कुछ हो गया तो आपको पूरा परिवार या किसी बच्चे के माँ बाप के साथ कुछ हो गया तो उस बच्चे की पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है। हो सकता है उसको पढ़ने लिखने का कोई प्लान हो, बाहर भेजने का कोई प्लान माँ बाप ने बनाया, लेकिन उनको कुछ हो गया तो अब वो भेज नहीं सकते। इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी है कि अपने माँ बाप से, अपने गार्जियन से ये कहें कि जो है वो हेलमेट लगा के चलें। मोबाइल पर बहुत फ्रॉड हो रहा है। कोई भी ऐसा स्मार्टफोन यूज़र नहीं होगा जिसके साथ मोबाइल वाला फ्रॉड ना हुआ हो। अगर आपके मोबाइल पर कोई भी मैसेज आता है, लिंक आता है, व्हाट्सएप पे कोई लिंक आता है, कुछ भी आता है, तो आप जो है, अगर आप नहीं जानते हैं, आपसे मतलब गरज नहीं है, तो उस पर क्लिक मत करें। लालच में मत पड़े, किसी बहकावे में मत आए और डरे भी नहीं। कोई जो कुछ आपके साथ करेगी, जो कुछ भी आपके साथ होगा, वो यहाँ पिपरी थाने की पुलिस ही करेगी। दिल्ली, मुंबई या बनारस की पुलिस आने वाली नहीं है यहाँ पर। लेकिन आजकल ये खूब चल रहा है कि आपका
आपके बच्चा कहीं गया हुआ था और उसके बच्चे के बैग में ये मिला, आपका बच्चा थाने में ऐसे पैसे भेज दीजिए नहीं तो जेल भेज देंगे, या आपने एक ऑर्डर किया था और आपके ऑर्डर में जो है कुछ और गलत चीज़ मिली है जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है, आपका टिकट कर देंगे, आपको रामलला का दर्शन करा देंगे, आपका जो है आपको ये ऑफ़र आया हुआ है, आपको कई बार व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा जाएगा और बस ये कहा जाएगा कि भैया ज़रा इसे पहचान के बताएं आपके जानने वाले हैं क्या, और वो कोडेड फ़ोटो है। ऐसे अपराध हुए हैं। आपके व्हाट्सएप पे आया फ़ोटो, अब आदमी नहीं समझ रहा और बिल्कुल नए नंबर से है जिसका आपसे कोई ताल्लुकात नहीं है, और आपके व्हाट्सएप पे उसने एक फ़ोटो भेज दिया, कहा भैया ये आप इसको पहचानते हैं क्या, ज़रा देख के बताइए। आप देखेंगे ज़रूर, और देखेंगे तो उसमें उसका कोडिंग है पूरा, वो आपके मोबाइल की एक्सेस ले लेगा। अगर आपके साथ कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो, कभी भी कोई बैंक आपका कोई डिटेल नहीं मांगता है। ये बच्चे सारे अपने माँ बाप से भी बता सकते हैं। अगर फिर भी कोई घटना होती है तो 1930-1930 नंबर होता है, उस पर आप कॉल करके तुरंत ही मैसेज रिपोर्ट करा सकते हैं, नहीं तो अपने स्थानीय थाने पर दर्ज करा सकते हैं, तुरंत बता सकते हैं। थाना कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की कोई शरीफ आदमी नहीं जाता। आप बेझिझक आएँ, बिना डरे बिना शर्माए आएँ, अपनी बात कहें। हम लोग अंडर प्रेशर रहते हैं, कई बारी काम बहुत रहता है, इस वजह से कभी कभी आपको लग सकता है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सुनेंगे नहीं या हम करेंगे नहीं। हमारा काम है वो करना, उसी के लिए हम यहाँ हैं। 112 नंबर ऐसा नंबर है जो किसी भी काम में आप उसे डायल कर सकते हैं। कुछ भी आपको परेशानी होती है तो आप डायल कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ भूल गया तो 112 याद रखें। जागरूक बने, समझदार बने। आपके हाईवे पे जाते हैं, हाईवे का हेल्पलाइन नंबर होता है 1033, किसी को नहीं पता है। आप किसी का कार्यालय जाते हैं, वहाँ आपको कुछ ना कुछ सूचनाएं जरूर लिखी रहती हैं, आपको रखना चाहिए। भले ही आपकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आपके पास होना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो आप कर सकें। ये सारी चीज़ें बताएं, अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, उसे बताएं कि दूसरों के बारे में हेट ना करें, ना किसी कम्युनिटी के बारे में, ना किसी जो है महिला के बारे में, किसी बच्ची के बारे में। आप ये समझ लीजिए कि आप किसी भी लड़की के बारे में अगर कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं या मन में सोच रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपकी बहन के बारे में भी कोई ना कोई लड़का वैसा सोच रहा होगा। अब आप अपनी बहन के बारे में तो नहीं सुनना चाहते वैसी बात, लेकिन दूसरे के बारे में सोचें, ऐसा नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? बुली नहीं करना। हर लड़के में कोई ना कोई क्वालिटी है, हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी है, उसको समझने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अगर किसी को मैथ्स नहीं आती तो उसको कुछ उल्टा सीधा के शब्द बोलना, उसको परेशान करना, गुटबाजी करना, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। उसको आपका बड़कपन किस में है कि जिसको कोई चीज़ कम आती है उसको भी अपने साथ लेकर चलना है कि यार इसको भी किसी तरह से सिखाना है। एक दूसरे को समझाना, सिखाना, प्यार से रहना, तभी ना आप आगे बढ़ पाएंगे। अपने टारगेट्स फिक्स रखिए कि क्या काम करना है हमको जीवन में, कैसे करना है। तो यही सारी मेरी बातें थी। और कभी भी कोई ज़रूरत पड़े किसी को भी, आप बेझिझक बिना डरे सहमे। आप ही की तरह एक बच्चा था, एक विद्यालय में गए थे, तो वो एक बार कोचिंग जा रहा था तो उसकी साइकिल से एक्सीडेंट हो गया। सामने एक पिकअप आ रहा था, हालांकि धीरे ही आ रहा था, तो उसका कट लग गया तो उसके साइकिल का पहिया टेढ़ा हो गया। उसके अंदर एक हिम्मत थी कि एक बार सीओ साहब आए थे, मुझे बताए थे, तो वो सीधे मेरे ऑफिस पहुंच गया। कहा सर मेरा जो है कोचिंग जा रहा था मैं शाम को, मेरी साइकिल का पहिया टेढ़ा हो गया, मेरी साइकिल ठीक करा दीजिए। उसने जो है गलती से गाड़ी लड़ा दी मेरी साइकिल में। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, समझे? कभी भी और सही बात कहने की ज़रूरत है। कई बारी माँ बाप भी बहुत उल्टा पुल्टा सिखाते हैं कि वहाँ बता देना पुलिस को कि ये हुआ था, जो नहीं हुआ होता। ये मत करिए, इससे किसी दिन आपको भी नुकसान कर जाएगा। आपको सामने भी आपका बच्चा, आप उसे झूठ बोलना सिखा रहे हैं, आप उसे गलत बात करना सिखा रहे हैं। हमको तो पता चल ही जाता है, हमको बताने वाले बहुत लोग हैं, मोहल्ले से लेके रिश्तेदार नातेदार से लेके सब हैं हमारे पास, बहुत लोग हैं। हम सही बात निकाल ही लेते हैं। तो ये मत करिए कि उसको गलत शिक्षा दीजिए एज ए गार्जियन। और बच्चों, आप अपने जीवन में आप बड़े हो रहे हैं, आपको अपनी चीज़ें सही करनी है, लाइन अप करनी है, आपको सोचना है कि आप जीवन में क्या करना है और उस दिशा में प्रयास करने, मेहनत करनी है। लगनशील रहिए, अच्छे बच्चे बनिए, अच्छा इंसान बनिए। मेरी शुभकामनाएं हैं और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आएंगे, फिर बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।
a memento to our esteemed chief guest, Amit Kumar Sir, CEO Piperi. It's time to felicitate our shining stars. For this, I would like to invite Shiji Emerson ma'am on stage. Good morning to all of you. As we already heard from our Honorable Chief Guest, that hard work is never an accident. It is a result of high intention, sincere effort, and intelligence. Today, we honor our shining stars who have set a benchmark of excellence through their hard work, perseverance, and dedication. So this year, class toppers will be awarded with trophy, while the second and third position holders will be awarded with certificates. So may I kindly request our chief guest along with principal to present the awards and bless our young minds. So as I call out the names, students are instructed to come along with your parents. So we will start from 8A. So from 8A, the 8A topper is Vanshika Yadav with 94.49%. Vanshika's parents also please reach the stage. पेरेंट्स का आइए बच्ची इंतजार कर रही है With 93.31% and third is Ronak Tiwari with 92.27%. So Magdi's first parents and Ronak Tiwari's parents. 7.2%. Shivangi's parents please come. And second topper is Nyanshu Singh with 94.34%. And third, Aditya Kumar Rai with 93.79%. From 8th C, the topper is Vashvi Jaiswal with 98.7%. And second position, Aishwarya Rai with 96.25%. And third topper is Shrishti Gupta with 90.63%. Third, Shrishti Gupta. Now from 9th A, the topper is Shivam Mishra with 95.3%. Shivam's parents please come. पेरेंट्स आइए And from 9th A, second is Shagun Mittal with 94.59%. And third, Tanish Srivastava with 91.31%. And from 9th A, third is Pigu Singh with 92.75. Now from 9th B, the topper is Ritesh Kumar and he has secured 95.81%. His parents. And third is Tanish Srivastava with 91.31%. Now from 9C, the topper is Adarsh Gupta with 95.6%. Adarsh, parents please. And second is Swastik Nandi with 92.6%. And third topper is Amrita Jha with 91.95%.
Now from class 11, the topper is Kumud Pandey with 92.7%. And the second topper is Gagan Raj Mishra and he has secured 91.3%. And the third goes to Shaurya Srivastava with 87.9%. Now it's a matter of great pride for we Nirmalais as Anand Pratap Singh of Rao School of class 1st A secured second rank at the second level of International Olympiad of Mathematics. And he has been awarded with medal and a gift voucher of ₹500. So I request Anand, father and mother also to please come and assist Anand. Congratulations to all the toppers. Thank you dear sir and sister. Thank you Shiji ma'am. Now I would request principal to address the gathering. Respected CEO Sir, Mr. Amit Kumar, respected teachers, parents and my dear students. I am not here to speak more about leadership because Sir has already told you so much about leadership. But I am here, it is my responsibility and the privilege to extend a heartfelt thanks to all those who are here, who worked behind. First and foremost, I extend my sincere and deepest thanks to our Chief Guest, Commanding Officer of Police Department, Mr. Amit Kumar. Your presence, sir, your presence here today has not only honored us, but has also inspired every student seated here to value discipline, integrity and service. Your words were just a message, but a call to responsibility, and we are truly grateful that you shared this time with us in despite of your demanding duties. Thank you, sir. More than a police officer, I can say that he is a real motivational speaker and he motivated us. Let us give a big round of applause to him. And my dear parents, thank you for your constant support and encouragement. Your presence today is bond between home and the school. Thank you for entrusting us with your children, for working alongside us in shaping their future. Thank you. Let us give a big round of applause. To our shining stars, academic achievers and toppers, today we celebrated your hard work and perseverance. You are a source of pride for all of us. Keep aiming higher and may your journey continue to inspire others. Let us give a big round of our toppers. And today, the day of our new leaders. Congratulations once again. May you wear your badges not just on your uniforms, but on your hearts with a deep sense of duty and courage and humility.
Congratulations once again. Let us give a big round of applause to them. And a very special and with a deep gratitude, I thank all my teaching staff whose effort go far beyond the classroom. You have guided, trained, rehearsed, and motivated our students tirelessly. Your dedication is the silent strength behind all that we celebrate today. I also take this opportunity to thank our sports teachers, dance and music teachers, anchors, and all those who have decorated the stage. It was really wonderful. And let us give a big loud round of applause to our teachers. Also, I take this opportunity to thank our students, congratulate our students who really performed well on the stage, and it was really wonderful. Also, I take this opportunity to thank our 4th class employees. Today, they came early morning and kept clean and arranged all these things today morning. Let us give a loud round of applause to them. So I thank you, all of you, and congratulate you. And once again, thank you, sir. And thank you everyone for being a part of this wonderful celebration. Thank you and have a nice day ahead. ग्रुप फोटो हो जाएगी